Next, we have case law on return of income. So number one is so Lodi Property Company Limited versus Department of Revenue 2010, and on similar terms, Region Power Private Limited versus CBGP 2019. So this is latest case law. So I think this is important. So in this case, so power of CBGP to condone delay in filing return of income. Suppose assessee is not able to file return of income up to due date, so can that will be condoned by Central Board of Direct Taxes. So it has been held that it means CBGT may allow the assessee to file return of income after due date, and it will be accepted as original return. So if circumstances for delay are beyond control of assessee. So, and what are those circumstances? Like natural calamity may be there, it may be natural calamity, or there may be death of any family member. So these are the normal circumstances. So due to which assessee was not able to file return of income in time, so that one can be allowed by CBGB. And if it is allowed, it means assessee is eligible to carry forward of losses. Because you must know that if return of income is not filed up to due date, certain losses like profit and gains, lottery, and loss from that is maintaining race horses, they cannot be carried forward. It means in this case, if permission is allowed to file return of income after due date, then losses will be allowed to be carried forward. So this is important decision. Another one is so Sunanda Ram Gekha versus CIP 94, CIP versus Haji P. Muhammad 1981, and Dhampur Sugar Mills versus CIP 1973. So in this case, we have to discuss what are the reasons for filing revised return under section 139(5). So like we know that what are different types of return. Let us recall. Under section 139 subsection 1, we file original return up to due date. 139 subsection 3, it deals with return of loss. If you want to carry forward certain losses, you must file return, which is return of loss under section 139 subsection 3. So if you file return after due date, but up to the end of assessment year, so it is called belated return under section 139 subsection 4. And you can also revise your original return or your belated return also later on. Section is 139 subsection 5, which is called revised return. So question is, if you want to file revised return under section 139 subsection 5, you want to revise your original return or your belated return, then under what circumstances it is allowed, which is called reasons for revised return. So in this case law, it is held that there should be bona fide omission or mistake by assessee. तो एसएससी ने जब रिटर्न फाइल की है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कोई आप एग्जम्पशन क्लेम करना भूल गए अपनी, राइट, तो आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है या कोई एंट्री आपकी ओमिट हो गई है, आपने इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की अपनी रिटर्न में, तो उसको हम कहते हैं जेन्युइन मिस्टेक है। और जो मिस्टेक है एक मस्ट बी डिस्कवर्ड बाय एसएससी हिमसेल्फ, और एसएससी को खुद ही पता लगनी चाहिए वो रिटर्न की मिस्टेक हो गई है। देन एसएससी कैन रिवाइज द रिटर्न and it this revised return will substitute to original return। तो इसमें जब ये मिस्टेक पता लगती है असेसिंग ऑफिसर को, जब आपने रिटर्न फाइल कर दी है, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो आपको इन्फॉर्म करता है, तो फिर आप रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। फिर को असेसिंग ऑफिसर के बेस पे ही आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जो उसका ऑर्डर होगा। तो इसमें से मिस्टेक डिस्कवर होनी चाहिए बाय एसएससी हिमसेल्फ, और मिस्टेक आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, कोई एरर हो गई है, कोई ओमिट हो गई है कोई भी ट्रांजेक्शन, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। Another case law is CIT versus गोविंद नगर शुगर लिमिटेड 2011। इन दिस केस अब आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, मीन्स आपकी जो जैसे लॉस की रिटर्न है सपोज कर लो बिलेटेड हो गई है, अब इसमें अब लॉस आ रहा था आपका। अब मेन क्वेश्चन है कि कैन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड अप टू ड्यू डेट। हमारा बेसिक रूल होता है जो पीजीपी का लॉस होता है
या आपका कोई कैपिटल में लॉस आ रहा है या कोई आपका मेंटेनिंग रेस हॉर्सी का लॉस आ रहा है, तो तभी कैरी फॉरवर्ड होता है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइम पर फाइल कर ली है, चाहे वो लॉस की रिटर्न भी है। अब आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, इट मीन्स वो बन गई बिल एथिक रिटर्न, और लॉस आ रहा है तो क्या लॉस को फिर अब आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड और सेट हो। यस, इसमें होल्ड किया गया है। तो जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है यदि आप रिटर्न टाइम पर नहीं भी फाइल करके तो वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, सो इट इज अलाउड। Next case law is our Odisha Rural Housing Development Corporation versus Assistant Commissioner of Income Tax 2012. So in this case, what happens? SSC files original return of income and later on files a revised statement of income. No return, but only statement of income is revised. And whether it is revised return of income, तो पहले आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की, फिर उसमें एक इनकम स्टेटमेंट होती है, उसको रिवाइज कर दिया बस हमने, और वो सिर्फ अलग से हमने असेसिंग ऑफिसर को भेजी रिवाइज करके। तो वो जो आप भेज रहे हो रिवाइज स्टेटमेंट इनकम, तो क्या वो रिवाइज रिटर्न इनकम मानी जाएगी? नो। तो इट इज हेल्ड दैट इट इज नॉट रिवाइज रिटर्न, बट फुल रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। तो आपको यदि इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करनी है तो आप अपनी रिटर्न को ही पूरा रिवाइज कीजिए, उसमें इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करके दोबारा से रिटर्न फुल रिटर्न आप फाइल कीजिए, वो आपकी रिवाइज रिटर्न मानी जाएगी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। सिर्फ असेसिंग ऑफिसर को आपने इनकम स्टेटमेंट भेज दी रिवाइज करके, गेटिंग नोट अलाउड। अनदर केस लाइज श्रीमती ए कौशल्या बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। देखा कि पैन जैसे आपको चाहिए, पैन की रिक्वायरमेंट होती है अंडर सेक्शन 139 ए में। एसएससी की टोटल जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, उसमें उसको पैन की जरूरत नहीं है 139 ए में। बस सपोज एसएससी की कोई और इनकम आ रही है, जैसे कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है जिसकी लिमिट जैसे 40,000 से ज़्यादा है, तो उस पर टीडीएस लगेगा। एसएससी गेट्स इनकम ओनली टीडीएस इज एप्लीकेबल। अब टीडीएस के लिए आपको पैन नंबर देना पड़ता है, तब आपको नॉर्मल टैक्स रेट रखा है टीडीएस का। यदि आप पैन नहीं देते हैं फिर उसका डबल हो जाता है 20%। It means to get TDS at a normal rate, so he had to quote PAN under section 206 AA। और उसकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो पैन उसके पास नहीं है, पर यहाँ पैन चाहिए टीडीएस को सेव करने के लिए। अब टीडीएस की अब देखिए आपके पास पोस्ट लो पैन नहीं है या आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, फिर आपको एक फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है 15G में कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो टीडीएस जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए पर इस फॉर्म के लिए भी आपको पैन चाहिए। अब पैन आपके पास है नहीं, तो क्वेश्चन है कि अब पैन आपने लिया नहीं है, इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं है, 15G फॉर्म आपको मिलेगा नहीं क्योंकि पैन नहीं है, तो टीडीएस जो है फिर कट जाएगा आपका हाई रेट के ऊपर, क्योंकि आपने पैन नहीं किया और आपकी इनकम टैक्सेबल भी नहीं है, पर टीडीएस लगना भी नहीं चाहिएगा। तो इसलिए डिसीजन लिया है, तो इट क्रिएट्स हार्डशिप टू द एसएससी, वो इनकन्वीनियंस हो जाएगी एसएससी को, इनकम टैक्सेबल नहीं है फिर भी पैन लेना पड़ेगा, क्योंकि है गैट देखिए आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, इट मीन देन नो पैन इज रिक्वायर्ड एंड सेक्शन 206 डबल ए नॉट अप्लाई, फिर आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा, 15G फॉर्म भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सिंपली लेटर दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं आप जो अपने बैंकर को या जो भी पर्सन आपका टीडीएस काट रहा है, गेट माई इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट विदाउट कोचिंग पैन। अनदर केस लाइक गोएट इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2006। इसमें एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नोट क्लेम, और वो रिटर्न में अपनी डिडक्शन को क्लेम करना भूल गया, रिटर्न में उसने क्लेम नहीं की। एसएससी ने एक इशू किया एक लेटर टू द असेसिंग ऑफिसर को कि मुझे आई वांट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कि मेरी डिडक्शन अलाउ कर दो जो मैंने रिटर्न फाइल किया है। मीन्स क्या किया एसएससी ने, इशू किया लेटर टू असेसिंग ऑफिसर, तो क्या उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में? सिर्फ लेटर इशू करने से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बेटर मेथड क्या है, टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो ओमिट हो गई है आपकी ओरिजिनल रिटर्न में, जो आप भूल गए हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 फाइल में। अब दोबारा से पूरी रिटर्न को रिवाइज करो, 80C की डिडक्शन क्लेम करो और उसको सबमिट कर दो।
तो गैप विल बी वैलिड और आपको रिएक्शन मिल जाएगी। सिर्फ लेटर इशू करने से काम नहीं चलेगा असेसिंग ऑफिसर। ये सारे केस लॉ हैं हमारे रिटर्न ऑफ इनकम के, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन रीड।